Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Farouk, and it is week 13, and we are going to talk about the leftover portion of the seismic microresonation with respect to Pakistan, and then we will talk about the dynamic properties of soils. In the previous lecture, we talked about the probabilistic seismic hazard analysis, and then we talked about all the four steps in detail, and then we talked about the reoccurrence law, the mean annual rate of accidents, and return period concepts. And then we talked about the tectonic setup of Pakistan, its faults, and then the tectonic zones. Those are also called as microzonation. So we talked about those zones a little bit in the previous lecture, and today we are going to continue from that. And so you have noticed that this subject is really important for the disaster management and mitigation work with respect to earthquakes. So we have the knowledge of earthquake happening and the strong ground motion, and then we talked about the hazards in which we have deterministic seismic hazard analysis, probabilistic seismic hazard analysis, and then we talked about the application of probabilistic seismic hazard analysis towards Pakistan. So that the report that maybe Mahad has shared with you the report. If he did not, then I will gonna share with you the report from where I have taken the content of the slides from the previous lecture, and also today there are a number of slides. Those are taken from that report, so you can study that report for the detail, and you are very welcome to ask me if you have any questions related to that. So let's start today's lecture. So we were talking about the seismic zonation of Pakistan, and before talking about this, we have already set the background. You know, we talked about the tectonic setup. We talked about the thrust faults; those are present in Pakistan, and based on that, based on their seismicity, based on the digital record that is available on different websites related to earthquake happening in Pakistan, so based on that, we can divide the Pakistan and surrounding areas in 19 zones, right? So this is and how those zones are divided, because the division is based on seismicity. I mean, similar kind of seismicity, geology, source mechanism, and the stress direction of the region. So this is what we talked about, and we already know that there are many zones in Pakistan. Those are very active. You know, these zones have different level of activity, right? So it means not all of the zones are very active, and not all of the zones are I mean you can say that minor active, you know. So every zone has its own seismicity, or you can say the tectonic source, and its geology may be different from other zones. So and the pattern of the earthquake happening may be different. So, but we don't need to go in the detail of those things. We just need to remember that we have 19 seismic zones for Pakistan and nearby areas, right? So the region 5, 6, and 7 were further divided with respect to the depth, as these zones have the seismicity for different depths, which means that we have a lot of record that is available for these zones. So this is further divided into you can say the subzones with having the different depth of focus. I mean, the occurrence was based on the depth of focus. They are divided as shallow earthquakes, deep earthquakes, and intermediate earthquakes.
right? All right. So these were the zones, and we already discussed some of them. Like this is zone number one, and it has some of the northern part of Pakistan, and then some portion of the Azad Jammu Kashmir, and then the disputed territory. So, and then some part of the India is also here, right? So then you can see that this is zone number 2. This is what we talked about. Zone number 3, zone 2 and 3 are in upper Balochistan, and then we have zone number 6. This is zone number 6, and this is zone number 5. So these are also very active. So these zones are divided into sub zones based on the depth of the occurrence of the earthquake, right? All right. So how these zones were formulated, or I mean, though these zones were created, these were created based on their seismicity first of all, and then the lithology, and then based on the stress pattern. So we need to look for the history of occurring of an earthquake in a particular area. So we have some recorded history of occurrence of mega earthquakes in Pakistan, and also some of the based on the historic events. So 1905 Kangra earthquake that had magnitude 8.0. The Kangra earthquake was with magnitude 8.0 based on Gutenberg and Richter of 4th April 1900 in the northwest Himalaya near Dehradun. That was in India, but it was a very devastating earthquake, and it also affected the Pakistan as well, right? Then, a lot of casualties were reported, and number of buildings were destroyed, because at that time there were no codes, and there was nothing like that to follow the mega structures. I mean, they were not too much high structure, but still whatever the structures were there, I mean, they were destroyed. Most of them were destroyed. So the other history, like the intensity and other description is given over here. So, but you need to remember, what was that earthquake, where it was triggered, and what was the cause of that earthquake. All right. So we have 19 zones, and so how these zones were prepared, there are some basic principles we already talked about. I mean, those principles are, like seismicity and lithology and the stress pattern, right? So here you can see the zone number 1, that is called as Kohistan Kashmir zone. So this is the zone number 1, Kohistan and Kashmir zone. So these zones include mostly the Kashmir area, some part of the Gilgit-Baltistan and NWF, Northern Western Frontier Province, and the some of the Upper Punjab. That is actually the now it is known as KPK. You know, so this zone is very active, and there are 1905 earthquake was triggered in this zone, right? So the maximum magnitude events, the one of them we have already talked about, that is the 1905 earthquake, and then you can have other earthquakes like Quetta has been hit 4 times. You know, the similar kind of earthquakes used to trigger at the same locations, nearly same location. After at regular interval of time, like 50 years, after 100 years, like after 200 years, depending upon the return period of those particular earthquakes. So Quetta was hit 4 times: 1888, 1893, 1900, and then 1935. So 4 times it was struck by a number of big earthquakes with 8 to 9 intensity, and then Peshawar hit by thrice in the similar sort of period, like 1868, 1875, and 1878. So you can see that nearly 100 years ago, I mean, there were
there were number of cities of Pakistan where I mean we have a strong ground motion, we have strong events, but in this century, I mean we have just one major earthquake that was triggered in 2005. So and because of you can say I mean अल्लाह ताला की रहमत की वजह से अभी तक इस तरह के earthquake दोबारा नहीं आए, जिस तरह के earthquake हिस्ट्री में पहले आते रहे 100 ईयर्स या इससे 120 साल पहले की हिस्ट्री अगर आप देखें, राइट। तो इसी तरह से मतलब ये सारी हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि 18 सेंचुरी और अर्ली 19 सेंचुरी में ज़्यादा जो इवेंट्स थे वो ट्रिगर हुए। तो जो इसी तरह के अर्थक्वेक्स है वो डेफिनेटली आई मीन देयर आर चांसेस कि वो दोबारा भी आ सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी डू द seismic hazard analysis so that we need to know I mean what are the areas those are more susceptible towards earthquake happening, right? So all these seismic events within the boundaries of Pakistan or near have been devastating, causing famines and extensive damage such as loss of lives. All right. So based on that report that was presented by Pakistan Department Met Department, they performed probabilistic seismic hazard analysis based on the data that is available for Pakistan, and they have prepared different hazard maps. Excuse me, different hazard maps with different probabilities. So you can see here the most useful way of presenting the result are the in terms of hazard and intensity map for different return periods. So this is what is being done by other countries of Pakistan. For Pakistan, we have also prepared these maps, but those are not as much accurate as the other countries have. So we have for 50 years, 100 years and 500 years return period, right? Related to the estimated ground motion to annual exceedance probabilities. So what is the annual exceedance probabilities of those ground motions? Those are associated with these the earthquakes related to these return periods, right? And annual exceedance probabilities are actually the inverse of return period. So you need to know that. We already talked about this thing in detail in the previous lecture. All right. So the results are presented in terms of peak ground acceleration, PGA, and equal probability spectra. All results were computed by using the Abreses et al. Ground motion model as the basis and Crisis 2003 CL version software, right? So how these peak ground acceleration were computed based on the concept of probabilistic seismic hazard analysis, the techniques or the relationships given by Ambroises, I mean, et al. He was also a seismologist. So these, I mean, we can take any of the relationships, but based on our data, the seismologists took this relationship and based on the software that is already mentioned here, the seismic hazard analysis was performed, right? So all ground motions are computed for hard rock. For any given site, the local soil conditions, type and thickness will modify the ground motions predicted herein. Because the area is so big, I mean whole Pakistan. So we cannot know the geology of each and every inch. I mean up to a certain level of accuracy. We already overall we know that what is the geology and what are the materials available in different areas. But if you are going to perform the detailed seismic hazard analysis of a particular location where you are going to install any mega project, so over there, then you need to modify this model by entering the local site conditions, right? So those are very important. So hazard curves in terms of PGA values are shown in figures 8.1 to 8.4 for return period of 50 years, 100 years and 500 years respectively. All right, so let's go to the table.
So over here, the PGA values are given for a range of annual rate of accidents, probabilities, together with expected PGA value at 500 years. As we know that, we can have the seismic hazard maps based on the return period, like 50 years, 100 years, 500 years, 1000 years, right? And we can also find out the annual rate of accidents of some particular parameter. Like over here, it is peak ground acceleration, right, in meters per second. So you see here the annual rate of accidents probability. Like this is the annual rate of accidents probability. You can find out its return period as well by taking the inverse of these values, right? And we have return period, or these are given over here. For 0.02 it is 50 years, for 0.01 it is 100 years, and 0.005 it is 200 years. So similarly the other probabilities, right? So for Islamabad, the peak ground acceleration is given for 50 years is this value, right? And for 100 years it is this value. So you have noticed that there is an increase in the peak ground acceleration based on the return periods. If the return period is getting increased, the value of the peak ground acceleration is also getting increased. इसका मतलब ये हुआ कि इसके आने के chances कम है. जितनी वैल्यू कम होगी उतने ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा होगी. मतलब क्या, रिटर्न पीरियड ज्यादा होगा, क्योंकि बड़े इवेंट्स जो है वो ज्यादा टाइम के बाद आते हैं. सो दिस इज द रीजन वाई कि यहाँ पे वो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने बड़े इवेंट्स हैं उनका रिटर्न पीरियड ज्यादा होता है तो वो कम आते हैं. ठीक है, तो जितने इवेंट्स छोटे होते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं. जैसे कि पाकिस्तान में हर साल 5 या 6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक काफी ज्यादा आते हैं, जो कि आपको रिपोर्ट भी होते हैं मीडिया के अंदर. तो इस तरह से, लेकिन 7 या उससे ऊपर वाले अर्थक्वेक जो हैं वो कभी कभी आते हैं, राइट? तो उनकी जो है वो उनसे ग्राउंड मोशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन उनका रिटर्न पीरियड कम होगा, राइट? Similarly for Peshawar you can see the trend, similar kind of trend. और उसके बाद आप ये देखें कि डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है वो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू कम ज्यादा है. इस्लामाबाद में 1.5 है 50 ईयर रिटर्न के ऊपर, और आप ये देखेंगे ग्वादर में जो है वो बहुत कम है. ठीक है, इसका मतलब ग्वादर जनरली सेव है. कराची में भी उसी तरह का है, मुजफ्फराबाद में काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद कोयटा में भी है, उससे भी ज़्यादा है. ठीक है, बल्कि सबसे ज़्यादा ही गिलगित के अंदर, गिलगित में सबसे ज़्यादा जो है वो पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है 50 ईयर रिटर्न पीरियड के साथ. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि किसी एक रिटर्न पीरियड के ऊपर भी आप डिफरेंट सिटीज की साइज्मिसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं कि वहां पे कौन कौन से एरिया में क्या हैजर्ड है. इस तरह से अदर रिटर्न पीरियड्स के ऊपर भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट? तो ये जो एनालिसिस है, ये पीछे जो रिलेशनशिप आपको बताए हैं उसकी बेस के ऊपर ये परफॉर्म किया गया है. ठीक है, ये जो अभी यहाँ पे डिस्कस हुआ था ये वाला, तो इसकी बेस के ऊपर ये रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हुए और उसके रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए. सो दिस टाइप ऑफ मैप कुड बी जनरेटेड. अब ये जो मैप है इसमें आप ये देखेंगे ये PGA है. ठीक है, सॉरी, ये PGA है, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन इन मीटर्स पर सेकेंड. आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास 500 ईयर्स रिटर्न पीरियड के साथ है. ये जो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट, मतलब वो इसके लिए 500 ईयर्स के ऊपर जो है वो सारा डाटा जो है वो पूरे पाकिस्तान का जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया. ठीक है, ज़ाहिर है कि उसमें भी जो आपका मीटर्स पर सेकंड में पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी. 500 ईयर्स इज अ बिग टाइम, राइट? तो ये आप देख सकते हैं कि हिंदू कुश का जो एरिया है अफगानिस्तान वाले एरिया में, ठीक है, वो और उसी की जो एक्सटेंशन पाकिस्तान में है हिंदू कुश की, ये भी उसी के साथ है, तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी है यहाँ पे, राइट? ये आपके पास जो जोन नंबर 1 है, राइट, ये देखेंगे ये जोन नंबर 1 है. ठीक है, ये 5 और 6 जोन है, और ये उसके बाद आपके पास कोयटा वाला रीजन है. तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है. कोयटा जो है दैट इज़ वेरी एक्टिव एरिया. यहाँ पे अल्लाह ना करे अगर आपको कोई आएगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, ऑल राइट. So based on the same study, we have also some other kind of plots like peak ground hazard curves for different cities of Pakistan for 500 years. 500 years के लिए आपके पास
पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन के कर्व है, ठीक है। इस तरफ क्या है, ग्राउंड मोशन मीटर्स पर सेकंड। इस तरफ क्या है, एनुअल रेट ऑफ एक्सीडेंस, एनुअल रेट ऑफ एक्सीडेंस जो है उसके हिसाब से, ठीक हो गया। तो इसमें आप देखें कि आपके पास यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि ग्राउंड मोशन की जब वैल्यू बढ़ती है तो उसका रिटर्न पीरियड ज़्यादा हो जाता है, मीन एनुअल रेट ऑफ एक्सीडेंस उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसलिए ये जो है नीचे सबसाइड हो रही है मोशन, मतलब उसकी जो एनुअल रिटर्न पीरियड है उसका बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रही है रिटर्न पीरियड बढ़ता जा रहा है, उसका एनुअल रेट ऑफ एक्सीडेंस जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप डिफरेंट कलर्स में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है, ये वाली जो लाइन है ये मेरे ख्याल में गिलगित की है, ठीक है, गिलगित का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 500 के ऊपर फिर आप लाहौर देख लें तो लाहौर जो है वो काफ़ी नीचे है, ठीक है। इसके बाद बाकी सिटीज़ जो हैं उसको भी देख सकते हैं आप। Similarly, we have hazard spectrum for different cities of Pakistan. अब इसमें spectral acceleration है। ये जो आपका spectral क्या कहते हैं उसे, जो response spectra है, उसके वो यहाँ पे प्रिपेयर किया गया based on the subsurface conditions जो different cities के अंदर है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो है वो पावर स्पेक्ट्रा जो है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा के बेस के ऊपर आपके पास जो कोयटा है वो सबसे ऊपर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद गिलगित है, उसके बाद आपका ब्लैक है, ब्लैक वाला मुजफ्फराबाद है, ठीक है। और सिमिलरली आपके बाद फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है गिलगित आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है वो खुजदार आ जाता है मेरे ख्याल में। सिमिलरली जो लाहौर, इसमें लाहौर काफ़ी नीचे है, ठीक है, ये लाहौर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन है बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा प्रोवाइडेड विद द लोकल साइट कंडीशन। लोकल आपके पास जो जियोलॉजी है उसकी बेस के ऊपर किस तरह से ग्राउंड मोशन जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगी, किस तरह से ग्राउंड मोशन जो है वो आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, वो डिपेंड करता है लोकल साइट कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। तो अगर तो रॉक है तो रॉक में एम्पलीफिकेशन बहुत कम होती है, अगर सॉइल है तो सॉइल में एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्स फैक्टर है, लेकिन जैसे कि पहले डिस्कस किया कि ये सारा जेनेरिक है, ठीक है। तो अगर आपके पास लोकल साइट कंडीशंस प्रिसाइजली अवेलेबल हैं तो जब आप उसको इस मॉडल के अंदर डालेंगे तो वो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा रिफाइंड हो जाएंगे और वो आपके रिजल्ट जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया के हवाले से। सिमिलरली फोकल डेप्थ जो है उसकी बेस के ऊपर भी जो डिफरेंट जोन्स थे उसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। जैसे कि आपके 19 जोन्स हैं तो उसमें कुछ जोन्स ऐसे हैं कि जो आपके फर्दर जो है वो सब डिवीजन उसकी की गई, जिसमें आपके पास वो डेप्थ की बेस के ऊपर, जैसे जोन नंबर 1 है, जोन नंबर 1 में आप ये देख लें कि आपके पास नंबर ऑफ डेप्थ ये 0 से किलोमीटर्स में डेप्थ है, तो ये आप देखेंगे शैलो अर्थ की काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये मीडियम अर्थक्वेक्स हैं जिनकी डेप्थ जो है वो मीडियम लेवल पे, ये डीप अर्थक्वेक्स हैं। जोन 2 में देखें, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जो डीप वाली है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। डीप वाली नहीं कह सकते इसको, आप ये कह लेंगे मतलब थोड़ी सी इंटरमीडिएट डेप्थ के साथ, ठीक है। इसी तरह से ये क्योंकि ये किलोमीटर्स में डेप्थ इंक्रीज कर रही है, इसकी डिवीजन उस तरह से नहीं बनाई कि कितने वाले डीप लेंगे, कितने वाले मीडियम, कितने वाले जो है वो आपके शैलो में आएंगे, लेकिन आप उसकी डेप्थ को कर सकते हैं, डिवीजन बना सकते हैं बेस्ड ऑन दी सर्टन रूल्स, जैसे कि हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स कौन से होते हैं और उसके बाद आपके जो है ना वो शैलो अर्थक्वेक्स कौन से होते हैं और आपके जो डीप अर्थक्वेक कौन से होते हैं, वो हम डिवीजन पे लगा सकते हैं। सिमिलरली यू हैव जोन नंबर 4, जोन नंबर 5, जोन नंबर 5 में भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शैलो अर्थक्वेक्स जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। उसके बाद आप ये देखें जोन नंबर 6, जोन नंबर 6 में देखेंगे आपके पास कुछ जो है ना वो डीप अर्थक्वेक्स भी हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट टू डीप अर्थक्वेक बल्कि ज़्यादा है। तो ये हिंदू कुश का एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो डीप आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 नंबर पे आपके पास जोन, ये देखिए ये हिंदू कुश का एरिया है, यहाँ पे जो है ना वो साइज्मिसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये डीप ज़्यादातर डीप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डैमेजेस कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अक्सर हिंदू कुश में अर्थक्वेक आता है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड ज़्यादा भी होती है, लेकिन क्योंकि उसका फोकस थोड़ा सा डीप होता है तो डैमेजेस कम प्रोड्यूस होते हैं। ऑल राइट,
सो सो यू हैव सीन दैट कि बहुत सारे जो जोन्स हैं उसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं फोकल डेप्थ की बेस पे। अब ये डाटा कहाँ से आया, ये सारा इंस्ट्रूमेंटल डाटा है, ठीक है। ये डाटा आप जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे पीएमडी है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं डाटा, अवेलेबल है, उस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं जिस तरह से ये एनालिसिस किया है। इसके बाद जो है ना यूएसजीएस की वेबसाइट है, उसके बाद आपके पास हार्वर्ड की वेबसाइट है, और भी इस तरह से एक दो और जो थे, क्या कहते हैं उससे मैंने लिंक मतलब वो एजेंसीज के नाम शो किए थे। तो आप वहाँ से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं पाकिस्तान का, और उसमें वो डेप्थ भी दी होगी, उसमें एपिसेंटर भी दिया होगा, उसमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए होंगे, और उसमें आप उसकी फर्दर सॉर्टिंग कर सकते हैं। वो एक्सेल की फॉर्म में शीट होगी, उसको आप जीआईएस में शो कर सकते हैं अपने मैप के ऊपर, राइट। So overall, you can see the ground motion models are based on the depth. 50% seismic activity जो आपकी होती है ओवरऑल, आप ये देख लें कि मतलब आप इसको, बल्कि यहाँ पे ये हिंदू कुश रीजन की जो है ना वो गिवन है आपके पास कि 50% साइज्मिक एक्टिविटी जो है ना वो ओवरऑल 30 किलोमीटर की डेप्थ के अंदर होती है। उसके बाद जो 23% है वो 75 के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद 27 जो है वो आपकी एक्टिविटी जो है वो 210 किलोमीटर से, मतलब के जो रीजन है 120 से 300 के दरमियान वहाँ पे होती है। एवरेज डेप्थ इसकी आ जाएगी 210, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, लेकिन जो बड़े इवेंट्स हैं हिंदू कुश में वो नीचे आते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जो बड़े मेजर इवेंट्स हैं वो आपकी डेप्थ जो है उनकी वो नीचे होती है, वो डीप होती है, इसलिए वो डैमेजेस प्रोड्यूस कम होते हैं। शैलो डेप्थ में जो अर्थक्वेक्स आते हैं हिंदू कुश में, वो उनकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट द seismic setup of Pakistan and its microzonation and its I mean hazard maps based on the probabilistic seismic hazard analysis, ठीक है। तो इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। ये थोड़ा से मतलब कुछ ईयर्स पहले ये परफॉर्म किया गया था, ये जो क्या कहते हैं उसे, ये जो एक्टिविटी, तो रिपोर्ट थोड़ी सी मतलब आप इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसमें अगर नया डाटा आप लेके नए ट्रेंड्स आप इसमें डाल सकते हैं। लोकल साइट आपके पास कोई है, उसके उसका डाटा आपके पास सॉइल का अवेलेबल है, ठीक है। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, जैसे शेयर मॉडुलस है, ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर आप ये रिजल्ट्स जो हैं वो इस मॉडल के थोड़े से मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो फिर आपकी साइट स्पेसिफिक जो है वो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे, राइट। ऑल राइट, now we are going to talk about the dynamic soil properties, right। dynamic soil properties ये कोर्स के अंदर उस तरीके से इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वी रियली नीड टू टॉक अबाउट द डायनामिक सॉइल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज आर वेरी मच रेलिवेंट टू अवर एरिया बिकॉज ऑफ योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। you are able to understand these things. What are the soil properties? You have already taken geotech 1 and I guess you're taking geotech 2, or maybe next semester you will take that subject. So you know the soil properties. So those are a kind of static soil properties, right? So what are the dynamic soil properties? Dynamic soil properties mean how soil will respond when there is a kind of vibrations, right? When the soil is given some vibrations, how it is gonna respond. So what are the properties those we need to know, and those are called as dynamic soil properties. जो आपकी सॉइल प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, अब जो अभी लैब में आप जैसे अटरबर्ग लिमिट्स हैं वो आप फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आप यूसीएस फाइंड आउट करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं, इस तरह से और इस तरह के जो बेसिक सॉइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वो अ काइंड ऑफ स्टैटिक बेरिंग कैपेसिटी के लिए यूज होते हैं, वो जनरल सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। बट देयर आर सर्टेन टेस्ट दोज आर परफॉर्म्ड जिसमें आप शेकिंग देते हैं, आप सॉइल को शेक करते हैं, और वो शेकिंग ऐसे होती है कि उससे आप उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने के लिए जो है ना वो सेटअप ऐसा बनाते हैं जिससे उसकी डायनामिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट हो जाए। तो
सॉइल की स्टैटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है या डायनामिक ज्यादा होती है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि डायनामिक्स जो स्ट्रेंथ है सॉइल की वो ज्यादा होती है या कि स्टैटिक जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है? ठीक है, इसका आपने मुझे रिप्लाई देना है, राइट? All right, so if you look back whatever we have talked about so far, then where is our standing at the moment? सबसे पहले we talked about earthquakes, ठीक है? So that is chapter number 1 and 2, earthquakes physics, and the earthquake hazards and everything introduction that was given in chapter number 1 and 2, right? Then we talked about the strong ground motion. ठीक है, सबसे पहले देखा गया अर्थक्वेक हैं क्या, कैसे ट्रिगर होते हैं, कहाँ पे ट्रिगर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उसके हैजर्ड्स क्या है, फिर हम फिर वो हमें पता चल गया कि अर्थक्वेक सोर्स सब सरफेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, मूवमेंट होगी तो ग्राउंड मोशन प्रोड्यूस होगी, ग्राउंड मोशन प्रोड्यूस होगी तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, वो जो वाइब्रेशंस है वो एनर्जी को कैरी करके साइज्मिक वेव्स की फॉर्म में वो आपकी सरफेस तक ट्रेवल करेंगी, राइट? सो वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन के बाद आप वो ग्राउंड मोशन तो प्रोड्यूस हो गई, अब उस ग्राउंड मोशन ने करना क्या है, ठीक है, वो आपको अफेक्ट कैसे कर सकती है, उसके लिए फिर हमने साइज्मिक हैजर्ड जो एनालिसिस है उसके बारे में डिस्कस किया। उसमें इवैल्यूएशन ऑफ अर्थक्वेक सोर्सेज आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके बाद हैजर्ड साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस आपने परफॉर्म कैसे करना है वो हमने चीज़ें देखी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर आपको जो है वो बताती हैं कि जब आप लोकल साइट पे आते हैं तो वही जो साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस आपने परफॉर्म किया है उसमें फिर आप आगे आ जाते हैं कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर आपका कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। वो रिस्पॉन्स जो है वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन उसको फर्दर जो है वो हम लेटर जो 1-2 लेक्चर रह गए उसमें भी हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एनी हाउ नाउ वी आर हियर, चैप्टर नंबर 6 जो है वो किस चीज को डील कर रहा है, वो ये डील कर रहा है कि इमीडिएटली जब आपकी ग्राउंड मोशन आ जाती है सॉइल के अंदर, जैसे लाहौर है तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन 1000 फीट से नीचे तक सॉइल ही है, ठीक है, तो कहीं 1500 या इससे नीचे फिट जाएं आप तो फिर आपको बेड रॉक मिलेगी, सॉलिड रॉक मिलेगी, ठीक है। तो इट मीन कि ये जो सॉइल कवर है बहुत सारे एरिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता हो, अगर वो अर्थक्वेक्स के हवाले से ज़्यादा एक्टिव एरिया, क्योंकि लाहौर का एरिया इतना एक्टिव नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा इसको इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, राइट। लेकिन सॉइल जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें इतना पता है कि सॉइल जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है एज कम्पेयर टू रॉक, ठीक है। सॉइल में ग्राउंड मोशन एम्पलीफाई हो जाती है, जब एम्पलीफिकेशन होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। जब ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है, जब ड्यूरेशन बढ़ती है तो डैमेज ज्यादा प्रोड्यूस होता है। दिस इज द रीजन व्हाई वी ऑलरेडी नो दैट कि रॉक के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज कम प्रोड्यूस होता है, जो सॉइल के अंदर होता है उसको डैमेज ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पे ग्राउंड एम्पलीफिकेशन होती है, ठीक है। सॉइल के अंदर डेफॉर्मेशन ज्यादा होती है। लेकिन जब आप सॉइल की बात करते हैं तो उसके अंदर सैंड भी है, उसके अंदर सिल्ट भी है, उसके अंदर क्ले भी है, और इसके अलावा ये आपस में मिक्सचर भी है इसका किसी जगह पे, और उसके बाद ग्रेवल्स भी हैं, ठीक है। तो दिस इज, तो इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंट सॉइल्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं। अब सॉइल के अंदर भी क्लासिफिकेशंस है, बस सैंडी सॉइल्स में लिक्विफेक्शन हो जाती है, बेरिंग कैपेसिटी फेलियर हो सकता है अगर वो कंपैक्ट ना हो प्रॉपर्ली, लूज सैंड के अंदर ही होता है, ठीक है। अगर सिल्टी सॉइल है, क्ले है, तो उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, सैंड जो है उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। सो बेस्ड ऑन देयर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज देयर रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट टुवर्ड्स द अर्थक्वेक, राइट। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें सॉइल की डायनामिक प्रॉपर्टीज का पता हो, कि हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को जान सकें कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज होती हैं सॉइल की जो स्ट्रेंथ है अंडर डायनामिक लोडिंग वो किस तरह से चेंज हो जाती है, और ये कितनी इसके और स्टैटिक लोडिंग के दरमियान जो स्ट्रेंथ है कितना डिफरेंस होता है डिफरेंट सॉइल्स का, ठीक है। अगर एक सॉइल जो है वेल कंपैक्टेड है और वो स्टैटिक कंडीशन में डिफरेंटली बिहेव करेगी, उसकी बेरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन जब वो डायनामिक लोडिंग में आएगी तो उसकी बेरिंग कैपेसिटी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो वो डिफरेंस कितना है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करने की जरूरत है,
ठीक है, तो इसलिए हम आज जो है वो थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि सॉइल की कौन कौन सी जेनेरिक प्रॉपर्टीज हैं और डायनामिक प्रॉपर्टीज कौन सी है, ठीक है उसको। क्योंकि यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे ग्राउंड मोशन आपकी आती है 0.3 g बेड रॉक से, ठीक है। तो ये इसी को जूम करके यहाँ दिखाया गया कि ये अब डिफरेंट लेयर्स है, ये सॉइल की लेयर्स है, ठीक है। जब इस लेयर के अंदर ये वेव्स आएंगी, ठीक है, ये वेव्स इसके अंदर से एंटर होंगी, नीचे से ऊपर जाएंगी, तो क्या होगा, इससे ये होगा कि ग्राउंड की एम्पलीफिकेशन हो जाएगी, ग्राउंड जो है वो इसकी जो है ग्राउंड की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये फाउंडेशन के नीचे है, राइट। अब वो एम्पलीफिकेशन होगी कितनी, मतलब यहाँ पे 0.3 g है और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो 0.5 तक पहुंच जाए, ठीक है, 0.5 तक यहाँ पे वैल्यू पहुंच सकती है, ठीक हो गया। तो ये एक एम्पलीफिकेशन है कि रॉक के अंदर तो वो एम्पलीफिकेशन नहीं हुई, लेकिन जैसे सॉइल के अंदर जो ग्राउंड मोशन आई है उसने उसको ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि जब एम्पलीफिकेशन ज्यादा होगी तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा मूव करेगा, जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा मूव करेगा, ठीक है, इसकी शेकिंग बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू रॉक। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिटरमिन करके हमें पता चलेगा कि कौन सा ग्राउंड कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी बेस के ऊपर फिर आप साइट स्पेसिफिक एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करते हैं, राइट। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट, मेरे ख्याल में डुप्लीकेट स्लाइड है, तो लेट्स गो टू द प्रॉपर्टीज। So the nature and distribution of earthquake damage is strongly influenced by the response of the soils, ठीक है, ये चीज हमने अभी डिस्कस की है थोड़ी सी। बिकॉज जो सॉइल है उसको क्या मिल रहा है, साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग मिल रही है। स्टैटिक और डायनामिक लोडिंग में क्या फर्क है कि स्टैटिक में एक ही लोड लगता है, ठीक है, और वो जैसे आप सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, यूसीएस फाइंड आउट करते हैं, तो एक वो लोड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो स्टैटिक फॉर्म में इंक्रीमेंटल लोड होता है। इंक्रीमेंटल लोड में क्या होता है कि वो एक टाइम आता है कि सॉइल फेल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो साइक्लिक लोड होता है वो कौन सा लोड होता है, जो रिपीट करता है, जो बार बार रिपीट होता है। लेट्स सपोज कि 20 मेगा पास्कल का लोड लग रहा है, तो अब वो बार बार लग रहा है, मतलब हर सेकंड के बाद फिर लग रहा है, फिर लग रहा है, मतलब इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट हो रहा है जिससे मतलब वाइब्रेशन, ये इसको हम कहेंगे साइक्लिक लोड को वाइब्रेशनल लोड भी कहेंगे, ठीक है। कि सॉइल को आप बार बार हैमरिंग करें, जैसे आप हैमरिंग करते हैं, तो हैमरिंग से क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से आप ये समझ लें कि जो आपका ये वाला साइक्लिक लोड है ये बार बार इम्पैक्ट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड डिफरेंट है, 1 सेकंड हो सकता है, हाफ सेकंड हो सकता है, क्वार्टर सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम साइक्लिक लोड कहते हैं, जो कि रिपीट करता है इटसेल्फ, ठीक है। साइक्लिक लोड कौन सा होता है, जो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो वो जो साइक्लिक, इसका मतलब क्या है कि साइक्लिक लोडिंग के साथ एसोसिएटेड है साइक्लिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। वो जो साइक्लिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है, डायनामिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें आप याद जरूर रखा करें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हैं, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम में यही ज्यादा मसला है कि जब आपको एक चीज पढ़ाई जाती है तो वो साथ ही क्विज हो जाता है, साथ ही मिड टर्म हो जाता है, तो वो चीज आप भूल जाते हैं। तो अगला जो पोर्शन है वो हालांकि उसके साथ एसोसिएटेड होता है पिछले वाले के साथ, लेकिन वो आप मिड टर्म के बाद फाइनल टर्म देते हैं तो वो मिड टर्म से पहले वाली चीजें भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मसला है हमारे सेमेस्टर सिस्टम के साथ। मेरे ख्याल में जो टर्म सिस्टम है वो ज्यादा बेहतर है, जिसमें कि पूरे पूरे सब्जेक्ट में से एक ही दफा एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें ये होता है कि कम से कम आप 5-6 महीने एक चीज पढ़ते तो है ना, उसको बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन इस यहाँ पे स्पेशल सिस्टम में क्या होता है कि आप 1 महीना ज्यादा एक चीज याद रखते हैं, उसके बाद क्या होता है जब आप 4 सालों के बाद जब आप बाहर जाते हैं तो आपको ये पता ही नहीं होता कि आपने कौन सी चीज पढ़ी है कौन सी नहीं पढ़ी। हालांकि कुछ चीजें आपने पढ़ी होती है, लेकिन क्या होता है कि आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी होती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बीच में आपकी भी गलती है कि आप बस पेपर देने के लिए पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर आप 4 साल के बाद यही होता है कि हमें तो पता ही नहीं ये चीज पढ़ी है ही नहीं पढ़ी, लेकिन वो चीजें डिस्कस हुई होती हैं, बाद दफा कुछ लोगों को याद भी रह जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है। बीइंग इंजीनियर जो है वो ये
चीजें जरूरी हैं। ये नहीं कि वट एवर यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स यू जस्ट फॉरगेट अबाउट देम एंड देन मूव ऑन। इट्स नॉट लाइक दैट। You are supposed to remember and revise the things because all of the subjects have a kind of interconnection. So that connection should not be lost. Once you have taken the exam, it doesn't mean that you are supposed to forget those things, right? तो वो चीज़ें आप याद रखा करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जैसे ये डायनामिक सॉइल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आप इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अगले साल बिल्कुल ही भूल जाएंगे ये भी कोई चीज़ थी, डायनामिक प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हम डिस्कस ज़रूर करते हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉलेज इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डायनामिक सॉइल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कई बुक्स हैं, ठीक है। तो हमने तो भी इसको एक लेक्चर में ख़त्म कर देना है। तो BS लेवल के ऊपर ये लेक्चर ऐसे ही होते हैं। तो लेकिन जब आप एडवांस क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर आपको अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है तो वो उसको बेस बना के फिर आगे आप स्टडी को कैरी ऑन करते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर the things those you have already covered in the previous lectures. तो जब आप जॉब लेने जाते हैं, once you are graduated, then you are supposed to revise the important things those you have noted down during the lectures. जो आपने important चीजें नोट की होती हैं लेक्चर के दौरान हर सब्जेक्ट की, वो थोड़ी सी रिवाइज कर लिया करें, ठीक है, ताकि आपको ओवरऑल पता चल जाए कि आपने 4 सालों में क्या चीजें पढ़ी, ठीक हो गया। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पिछली चीजें याद रखना जो है वो जरूरी है, राइट। So we are now talking about the dynamic soil properties, the behavior of soil subjected to dynamic loading. Dynamic loading means the cyclic loading is governed by what have come to be popularly known as dynamic soil properties, ठीक है। So dynamic soil properties actually are those that influence wave propagation. Wave propagation means जो seismic wave जब उसके अंदर से पास करती हैं तो उसको influence करती हैं। Stiffness, damping and density, right? Stiffness is really important. Stiffness will define in true sense the shear strength of the material that is undergoing a kind of loading that is called as cyclic loading. So dynamic soil properties means the wave propagation का response, कि waves आप enter करते हैं ना soil के अंदर, तो waves को जब आप soil के अंदर करते हैं तो soils क्या करते हैं, तो waves करती क्या हैं, wave stress induce करती हैं, wave soil के अंदर क्या करती हैं, stress induce करती हैं, ठीक है। वो जो stress है वो फिर आपके पास उससे strain आती है soil के, ठीक है। इट मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द सॉइल्स अंडर डायनामिक लोडिंग। ये हम जैसे आप डायरेक्ट शियर टेस्ट करते हैं या यूसीएस करते हैं तो उसके अंदर आप स्ट्रेन का स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जो लोड होता है और जो फोर्स होती है उसके अगेंस्ट आप स्ट्रेन भी मेजर करते हैं, डेफॉर्मेशन मेजर करते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। सिमिलरली जो डायनामिक लोडिंग होती है वेव प्रोपगेशन में, उसमें भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है सॉइल का, ठीक है। तो उसको आप स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कौन सी सॉइल किस तरह बिहेव करती है। उसके लिए आप क्या करते हैं, यू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटिव रिलेशनशिप्स या कॉन्स्टिट्यूटिव जो मॉडल्स हैं वो आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो जो मॉडल्स होते हैं दोस कुड बी लीनियर। लीनियर मीन कि उसके अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, एक चीज बढ़ती है दूसरी कम होती है, तो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप्स। अप्रोक्सीमेशन जब आप करते हैं मॉडलिंग की, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को आपने जब डिस्कस करना है, यू आर सपोज्ड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। लीनियर का मतलब क्या है कि आपके पास जितनी फोर्स लगी अकॉर्डिंगली उतनी ही उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, और लीनियर में जो है ना उसके बाद आपके पास एक है, मतलब सॉइल का जो रिस्पॉन्स है वो लीनियर है, मतलब बिल्कुल ऐसे ये फोर्स लगी तो ये इस तरह से रिलेशनशिप आपके बन गए, ठीक है। ये लीनियर रिलेशनशिप है। सिमिलरली इक्विवेलेंट लीनियर, इक्विवेलेंट लीनियर का मतलब ये है कि आपका जो कर्व है वो थोड़ा सा ऐसे मतलब जो स्ट्रेट लाइन से हट गया है, तो इट मीन्स कि जो सॉइल का जो बिहेवियर है वो इक्विवेलेंट लीनियर है, ठीक है। तो इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि आपका कोई डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं है, कभी चीज़ बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, उसके बाद ये कि जब आप फोर्स को, लोड को छोड़ते हैं
तो वो दोबारा जो है ना उसी रीगेन नहीं होती शेप, ठीक है। वो जो लोड जब आपका रिमूव हो जाता है तो वो जो क्या स्ट्रेन है वो वापस नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की अप्रोक्सीमेशन होती हैं। तो जो जनरली हम लीनियर रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं इन अर्लियर क्लासेस, क्योंकि वो आसान होता है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो जो नॉन लीनियर है उसको मॉडल करना जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो फिर हम ज़्यादातर जो होता है, अगर आपने ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट लेने तो आप इक्विवेलेंट लीनियर जो है ना वो रिलेशनशिप लेते हैं, जो इसको कहते हैं पीस वाइज लीनियर, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हैं, आप ये देखें कि ये आपके पास लेट्स सपोज जैसे ये माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में काइंड ऑफ इलास्टिक डेफॉर्मेशन होती है एक हद तक, ठीक है। तो उसके बाद वो जो अगर आप वहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे आप छोड़ देते हैं स्ट्रेस को, तो ये वापस आ जाएगा, ये आपकी स्ट्रेन जो है वो सॉरी वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास डक्टिलिटी आ जाती है, उसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ होती है, और उसके बाद ये इस तरह का कर्व आपको मिलता है, ठीक है, माइल्ड स्टील में, माइल्ड स्टील में। उसके बाद अगर आप बी में देखें नॉन लीनियर इलास्टिक में क्या, अब ये जो है ना यहाँ तक तो इलास्टिक है, ठीक है। नॉन लीनियर इलास्टिक इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो है ना वो देखिए कर्व की फॉर्म में है, और मटेरियल जो है वो उसने क्या किया, बिहेव किया ऐसे कि इलास्टिक मटेरियल है, लेकिन उसका जो बिहेवियर नॉन लीनियर, कैसे कि ये जब आपने इसको वापस छोड़ा है तो ये दोबारा किसी और पाथ के साथ ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है, मतलब इसमें जो नेट स्ट्रेन है, जो रिजल्टेंट स्टेट है वो जीरो है। तो इस तरह का बिहेवियर से कहते हैं नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर इलास्टिक, ये इलास्टिक बिहेवियर तो है उसका, मतलब क्योंकि वो जब आपने फोर्स को छोड़ी है तो वो वापस उसी ओरिजिन पे आ गई है, जो स्ट्रेन है वो डिसअपीयर होगी उस सब्जेक्ट के अंदर, उस मटेरियल के अंदर, राइट। सिमिलरली परफेक्टली प्लास्टिक में क्या होता है कि जब आपने एक लेवल तक उसने मतलब इसके अंदर जो है ना वो डेफॉर्मेशन जो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, कि एक शार्प इंक्रीज हुआ, ये देखिए फोर्स लगी, एक शार्प इंक्रीज हुआ आपकी इलास्टिक स्ट्रेंथ में, उसके बाद सडनली जो है वो आपके पास जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, एक पीक आने की बजाय वो परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल में एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लग जाता है कि इसमें फर्दर उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होती, उसके अंदर ये यील्ड ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर है। एक होता है इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक क्या होता है कि आपके पास इलास्टिक बिहेवियर पहले आया, एक नोटिसेबल इलास्टिक बिहेवियर, यहाँ पे तो वो नोटिसेबल इलास्टिक बिहेवियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नोटिसेबल इलास्टिक बिहेवियर है। उसके बाद जब आपने जो फोर्स ज्यादा लगी तो उसके बाद वो प्लास्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये डिक्रीज नहीं हो रही, स्ट्रेंथ इसकी इधर डिक्रीज नहीं हो रही, तो ये आप कहेंगे इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल्स। सिमिलरली यू हैव ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल में क्या होता है कि जैसे ही इलास्टिक स्ट्रेंथ आपकी जो है वो ओवरकम हो जाती है, उसके बाद फौरन मटेरियल रप्चर हो जाता है, सो दैट काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एज ब्रिटल मटेरियल, ठीक हो गया। सिमिलरली वी हैव सम अदर काइंड ऑफ मटेरियल्स लाइक, ये देखेंगे अगर आपके पास ये एक मटेरियल है, उसका कर्व इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि एक सर्टन पॉइंट के बाद इलास्टिक उसकी डेफॉर्मेशन जो है वो ओवरकम हो जाती है, उसके बाद ये इस तरह से जो आपका मटेरियल है वो मतलब ट्रेंड वही है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी डिक्रीज होके उसी तरह का सिमिलर कर्व आगे चले जाता है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उस पेस के साथ नहीं है जिस पेस से पहले हो रही थी। इसको कहेंगे वर्क हार्डनिंग, कि मटेरियल हार्ड हो गया, एक दफा फेल हुआ है उसके बाद दोबारा हार्ड हो गया, तो उसमें वो जब लोड ले रहा है तो साथ साथ उसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, इसे कहते हैं वर्क हार्डनिंग। एक होता है कि आपका मटेरियल जो है वो इस तरीके से डेफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, जब आप लोड को छोड़ देते हैं तो दोबारा उसकी लोडिंग करते हैं तो वो उसकी मटेरियल वो जो उसका कर्व नीचे चले जाता है, ये देखिए पहले उसका कर्व इधर था, मटेरियल को आपने अनलोड किया तो वो अब दोबारा से इधर आ गया, तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई, देखिए ये उसका इंक्रीमेंट जो स्ट्रेंथ का वो कम हो गया, इसे कहेंगे वर्क सॉफ्टनिंग। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप गूगल करें, ये जो मटेरियल्स प्रॉपर्टीज के हवाले से ये जो कॉन्सेप्ट है कि वर्क हार्डनिंग क्या होती है, वर्क सॉफ्टनिंग क्या होती है, आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। इसमें जो है ना वो मतलब
मतलब हुआ क्या है, इसके अंदर भी स्ट्रेंथ डिक्रीज ही हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ना वो स्ट्रेंथ इंक्रीज ही होती जा रही है इस तरह से। ठीक है, कि इसमें डिक्रीज ओवरऑल हुई है, लेकिन क्या है कि वो डिक्रीज ऐसे नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ को वो मतलब वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसको आप कहेंगे मटेरियल जो है वो बिल्कुल फेल हो गया है। ठीक है, तो इसमें स्टिल मटेरियल लोड ले रहा है, लोड लेने के साथ साथ उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी मतलब उसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसे वर्क हार्डनिंग कहेंगे। वर्क सॉफ्टनिंग क्या है कि ओवरऑल आपके पास मटेरियल पहले ये ट्रेंड शो कर रहा था, आपने अनलोड किया, लोडिंग दोबारा की, तो उसका कर्व इस तरह से आ गया, तो ये वर्क सॉफ्टनिंग है। उसके बाद हो सकता है कि दोबारा इसको लोड करें तो इसका जो है वो कर्व ऐसे आ जाए। ठीक है, तो फर्दर उसके अंदर सॉफ्टनिंग हो जाए। ठीक है, so these are the very important concepts, those are related to stress strain relationships। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, so these are very important concepts। all right, so thank you।